से बी वो फूड प्रोडक्शन जाम में 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में आपको इसके आंसर्स की बताने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। 3 chairs and 2 tables cost rupees 700 while 5 chairs and 3 tables cost rupees 1100. What is the cost of 2 chairs and 2 tables? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ₹600. Question number 2. 12 men can complete a work in 8 days. 3 days after they started the work, 3 more men joined them. In how many days will all of them together complete the remaining work? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4 days. Question number 3. In an examination, a student was asked to find 3 by 14th of a certain number. By mistake, he found 3 by 4th of it. His answer was 150 more than correct answer. The given number is. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 280. Question number 4. A train 135 meters long is running with speed of 49 km per hour. In what time will it pass a man who is walking at 5 km per hour in the direction opposite to that of the train? तो इस केस में सही आंसर होगा 9 सेकेंड, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 5. Machine is sold at a profit of 10%. Had it been sold for ₹40 less, there would have been a loss of 10%. What was the cost price? तो कॉस्ट प्राइस होगा ₹200. Question number 6. 24 is divided into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 146. The first part is, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 13. Question number 7. If the simple interest on ₹1,400 be more than the interest on ₹1,000 by ₹60 in 5 years, find the rate percent per annum. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3%. Question number 8. If A's salary is 25% higher than B's salary, then how much percent is B's salary lower than A's? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20%. The area of a right angle triangle with base 6 meter and hypotenuse 6.5 meter is. तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7.5 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10. 3/48 is what part of 1/12? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3/4 part. Number 11. The ratio between two numbers is 3:4 and the sum is 420. The greater of the two numbers is. तो इन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा होगा 240. Question number 12. A man can row 6 kilometers in still water. If the river is running at 2 kilometers, it takes him 3 hours to row to a place and back. How far is the place? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 8 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 13. With an average speed of 40 km per hour, a train reaches its destination on time. If it goes with an average speed of 35 km per hour, it is late by 15 minutes. The total journey is. तो टोटल जर्नी होगी 70 किलोमीटर की. क्वेश्चन नंबर 14. The height of a cylinder is decreased by 8%, keeping its radius unchanged. What is the percentage change in its volume? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8% डिक्रीज. Question number 15. Compound interest on ₹2,000 at 5% per annum compounded yearly for 2 years is. तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ₹205 का. Question number 16. A cistern is normally filled in 8 hours but takes 2 hours longer to fill because of the leak in its bottom. If the cistern is full, the leak will empty it in. तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 40 hours. Question number 17. A bag contains ₹216 in form of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins. In the ratio of 2:3:4, the number of 50 paise coins is. तो 50 पैसे के होंगे यहाँ पे 144 coins. Question number 18. Two numbers are in ratio of 2:3 and their HCF is 6. The numbers are. तो numbers हैं 12:18. Question number 19. If a train run at 40 km per hour, it reaches its destination late by 11 minutes. But if it runs at 50 km per hour, it is late by 5 minutes only. The correct time for the train to cover its journey is. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 19 minutes. Question number 20. Length of a rope by which cow must be tethered in order that it may be able to graze an area of 9,856 meter square is. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 56 मीटर. तो क्वेश्चन नंबर 21 से आपकी इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन शुरू होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए. द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो, वेल प्लेड रवि. तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. द स्पेक्टेटर अपलॉड रवि सेइंग दैट ही
that he had played well. Question number 23, she said to him, why don't you go today? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, she asked him why he did not go that day. Question number 24, choose the correct spelling. तो इस इन ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी, अकोमोडेट. क्वेश्चन नंबर 25, ही हैज़ टू मैनी आयरन्स इन द फायर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इज एंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज साइमल्टेनियसली. क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिज़ाइन ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड मोज़ैक. Question number 27, 10 cadets turned up for the interview. Option A इसका करेक्ट होगा. Question number 28, their idea of a holiday is relaxing at a luxury resort. Option D करेक्ट है. Question number 29, the farmer bought an ox, a cow, a sheep. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. Question number 30, choose the word opposite in the meaning to the given word. Precarious. तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेफ. क्वेश्चन नंबर 31, पिक अप द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. करेक्ट द एक्यूज डैश टू द जज फॉर मर्सी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपील्ड. क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड आउट इन विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर. तो इसमें सी जो पार्ट है, फ्रॉम द वन आई हैव अडॉप्टेड सो फार, इस पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 33, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वाइल रिक्वायरिंग लिमिटेड कैपिटल. तो इन सब को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है सेंटेंस को. तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, PSRQ. तो क्वेश्चन नंबर 34, मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर. क्वेश्चन नंबर 35, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस. तो सेंटेंस है, वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर. तो इसका वन वर्ड होगा ऑप्शन बी, कोवर्ड. क्वेश्चन नंबर 36, इट इज़ द टाइम टू रिंग द बेल. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग. क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड आउट इन विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर. तो क्वेश्चन नंबर 37 की जो फर्स्ट पार्ट है, एज सुन एज आई रीच दिल्ली, इस पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 38, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्टाइल. क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय ट्रैफिक. तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर आपको फ्रेजेस के मीनिंग लिखने हैं. टू ब्रेक द आइस, तो इस फ्रेज का मीनिंग है ऑप्शन सी, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. क्वेश्चन नंबर 41, द टू ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू गो हैंड इन हैंड इन बिजनेस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूव इन यूनियन. क्वेश्चन नंबर 42, रीअरेंज द सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द सीक्वेंस, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म. तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, QSRP. क्यू पहले, इज जज्ड बाय पहले आएगा. क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेडेंटरी. क्वेश्चन नंबर 44, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लीक. क्वेश्चन नंबर 45, फ्रेंच लीव. तो ये होती है कैजुअल लीव. क्वेश्चन नंबर 46, द पॉइजनस गैसेज वर नॉट विजिबल इन द एयर. ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 47, साइंटिस्ट हैज़ यूज्ड purified water to wash away volcanic ash from the skeletons of victims. Question number 48, scientists who study atmospheric conditions have concluded that the volcanic eruption caused a tidal wave. Question number 49, scientists analyze data about this in the same way that the zoologist studies by cutting apart a specimen. Question number 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सॉलिड. तो ये थी आपकी 50 तक के क्वेश्चंस की आंसर की. थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर.